Good morning, friends. Chapter 6 Triangle. Theorem 6.4. Theorem 6.4 क्या स्टेटमेंट? If in two triangles, if in two triangles sides of one sides of one triangle are proportional या proportional to in bracket in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal, and hence the two triangles are similar. Two triangles are similar. फिर से बता बेटा क्या है कि टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रपोजल साइड्स या सेम रेशियो. तो साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल. तो हेंस द टू ट्राइंगल आर इक्वल. एंड दिस थियरम नेम इज अ साइड 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 एस एस एस. उसको क्या बोलते हैं बेटा? साइड 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 मीन्स एस एस एस. Now triangle ABC, A, B and C. Now other triangle DEF, D, E and F. ABC, AB is a 3 centimeter, BC 6 centimeter, and now AC 8 centimeter. DE 4.5 centimeter, EF 9 centimeter, and now 12 centimeter. Is it clear? अब now triangle ABC and triangle DEF, AB upon DE 3 by 4.5, 3 by 45 by 10 into 10, 15, 2 जा 3 जा 2 by 3, 2 by 3. अब now BC by EF 6 by 9, 2 जा 3 जा. तो now 2 by 3. And now other side CA ratio FD equal to 8 by 12. 4 2 जा 4 3 जा 2 by 3. Ratio are equal. Whole ratio are equal. So whole AB by DE equal to BC by EF equal to CA upon FD. Then triangle ABC similar triangle DEF in bracket side side. Is it clear? हो गया क्लियर. अब नाउ रिमार्क याद रखना बेटा उसमें कि आइदर ऑफ टू कंडीशन नेमली कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल. ये याद रखना है आपको रिमार्क. फर्स्ट कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स
angles are equal, number 2, and sides are sides are in the same ratio. Same ratio is not sufficient. Sufficient side is not sufficient for two polygons. Polygons to similar. Okay, 6.3 and 6.4 theorem में similarity क्या था? In case of similarity of the two triangle, it is not necessary to check both the condition. दोनों कंडीशन क्या नहीं कि बड़ा कि एंगल और साइड करने की जरूरत नहीं है. एक प्रूव कर दो, इसके हिसाब से दूसरी कंडीशन अप्लाई करना है. क्लियर हो गया? अब नाउ थियरम 6.5. थियरम 6.5. 6.4 में कौन सी कंडीशन थी? साइड साइड साइड. 6.5 में साइड एंगल साइड. 6.5 में क्या आएगा? साइड एंगल साइड. इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are in the same ratio. So then the triangle are similar. Then the triangle are similar. क्लियर हो गया कि वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द अनदर एंगल ऑफ ट्राइंगल. एंगल इक्वल है एंड साइड्स ऑफ रेशियो इंक्लूडिंग आर सेम. देन ट्राइंगल आर सिमिलर. इज इट क्लियर? इज नेम इज अ साइड एंगल साइड मींस SAS. क्या है? SAS. नाउ गिव एग्जांपल. ABC triangle ABC is a 2 centimeter. 4 centimeter is a 50 degree angle. The other triangle is DEF, DE and F. 50, 3 centimeter, 6 centimeter, right? अब now triangle ABC and triangle DEF. ABC and DEF. तो AB upon DE equal to AC. AB the AC upon DF equal to 2/3. दोनों में 2/3 आएगा. देखो 2 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 6 है तो 2 2 जा और 3 2 जा कट हो जाएगा. 2 2 2/3. एंड एंगल इक्वल है तो एंगल A equal to angle D. The angle equal and sides are ratio are equal. Then कौन सा theorem आएगा? Now triangle ABC similar, which correspond are similar. ABC similar triangle DEF in bracket side angle side से हो गया. क्लियर. देखो स्पेशल केस ऑफ साइड एंगल साइड में याद रखना है. इन केस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल तो हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रपोर्शनल टू द हाइपोटेनियस. तो वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन विच आर सिमिलर. नेम इज RHS theorem.
कौन सा उसको थ्योरम बोलते हो? ए बी सी। देखो हाइपोटेनस राइट एंगल एंड साइड, ठीक है, कि बोथ ट्रू ट्राइंगल, अकेले एक में नहीं दोनों में ट्राइंगल में क्या होगा? हाइपोटेनियस साइड एंड राइट एंगल होगा, तो उसका नाम क्या है? आर एच एस थियरम। किसके अंदर इंक्लूड है? एस ए एस के अंदर, मीन साइड 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 एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड में। क्लियर होगा? आर एच एस। Now some important results of similarity of triangle. First is if two triangles are similar, the ratio of their perimeter is same. Yeah, if two triangles are similar, the ratio of their perimeter is same as the ratio of their corresponding sides. If two triangle ABC similar triangle DEF, then AB upon DE equal to BC upon EF equal to CA upon FD equal to AB plus BC plus CA upon DE plus EF plus FD, sum of the all side, तो equal to perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF. याद रखना बेटा, इक्वल टू एग्जाम में MCQ में या क्वेश्चन में आ सकता है स्टेटमेंट, राइट? स्टेटमेंट का यूज़ करके हमको सम सॉल्व करना है। हो गया क्लियर है? नंबर फर्स्ट। अब नाउ नंबर टू। नंबर टू इज अ ट्राइंगल ए बी सी इफ ए डी इज अ मीडियन। कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी, ए डी इज अ मीडियन, तो नाउ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल टू 2 in bracket ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। दिस थियरम नेम इज एपोलियस थियरम। उसको क्या बोलते हैं? एपोलियस थियरम। हो गया क्लियर? नंबर टू। अब नाउ नंबर थ्री, ये एमसीक्यू में भी काम आ सकता है बेटा। हो गया क्लियर? अब नाउ नंबर थ्री। नंबर थ्री क्या है? इफ ट्राइंगल, इफ इन अ ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल, बाइसेक्टर है ऑफ एनी एंगल, सपोज ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी बाइसेक्टर है, साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, इज अ डी पॉइंट, तो व्हाट इज द रेशियो? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। ये याद रखना है। हो गया क्लियर? ये बाइसेक्टर ए बी था, ए से पास किया है, सपोज ए बी एंगल से पास कर रहे तो रेशियो क्या आएगा? जहाँ से पास हो रहा है उसका ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, यहाँ पे डी है तो ए डी अपॉन डी सी। हो गया क्लियर? कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये नंबर थ्री था, राइट? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड। हो गया क्लियर? अब नाउ नंबर नेक्स्ट, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड। क्लियर हो गए? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए। अब नाउ एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 टेक्स्ट बुक रखना है आपको, पता है। एग्जाम्पल 5 में क्या फाइंड करना है आपको? फिगर दिया है, नाउ फाइंड द एंगल पी, ये फाइंड करना है हमको, एंगल पी। देखो रेशियो है टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। रेशियो देखो ए बी, तो पता कैसे है कौन सा रेशियो लेना है? यहाँ पे ए बी ले लोगे, ए बी अपॉन, तो ये अनदर ट्राइंगल है तो उसका देखो एक साइड होगी बेटा डबल होगी, 3.8 का डबल कौन सा? 7.6 मीन्स क्या आएगा? ए बी, तो आर क्यू, आर क्यू 3.8 डिवाइड बाय 7.6, 2 सा है क्या आएगा? 1/2 मिल गया। क्लियर? 1/2। अब मैं बी सी, बी सी, तो यहाँ पे आर क्यू है तो क्या आएगा? क्यू पी, तो मिल गया आपको क्यू पी इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू ऑल्सो 1/2, ऑल्सो 1/2, राइट? क्लियर? अब क्या बेटा? ए बी बी सी और सी ए आर क्यू क्यू पी, तो यहाँ पे क्या आएगा? पी आर,
3√3/6 √3 कर 3 2 तो इक्वल टू क्या आएगा 1/2। हो गया क्लियर। ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू बी इक्वल टू सी अपॉन पी आर। साइड इक्वल हो गई, हो गया क्लियर। अब सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट है। नाउ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल, देखो ए बी तो यहाँ पे आर क्यू, ए बी आर क्यू, बी सी तो क्या आएगा क्यू पी, राइट, और सी ए तो पी आर, ए बी सी तो आर क्यू पी, आर क्यू पी इन ब्रैकेट वन साइड 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 के हिसाब से। क्लियर हो गया, साइड 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 से क्लियर। तो देखो साइड साइड क्लियर है तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए जो एंगल ए है इसके सामने देखो एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 80 मिल गया आपको। अनदर देखो एंगल बी आपको दिया है, एंगल बी इसके सामने देखो एंगल बी तो क्या आएगा, एंगल बी के सामने देखो एंगल बी तो यहाँ पे देखो पी आएगा, पी नहीं देखना पड़ा, ये सिमिलर है एंगल बी तो एंगल क्यू इक्वल टू 60। अब एंगल सी इक्वल टू एंगल पी हमको फाइंड करना है, राइट। नाउ ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल प्लस सम ऑफ द ऑल एंगल इक्वल टू क्या होता है 180। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। एंगल पी हमको फाइंड करना है, एंगल क्यू 60 प्लस एंगल आर 80 इक्वल टू 180। एंगल पी प्लस 60 प्लस 80 140 इक्वल टू 180। एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 140 तो एंगल पी इक्वल टू 40। फाइनल आंसर हो गया क्लियर हो गया। फिर से बता बेटा, हमको पता कैसे कौन से रेशियो लेना है। अब देख लेना ट्राइंगल में बेटा कि इसका डबल कौन सी साइड है, साइड दिया है तब क्लियर दिए, हो गया क्लियर। अब नाउ एग्जाम्पल 6 देखना, सॉरी एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 देखो आपको क्या दिया है, अ गर्ल ऑफ हाइट 19 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प स्पॉट है। लैम्प स्पॉट ड्रॉ कर दो पहले, सबसे पहले लैम्प स्पॉट ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। ये लैम्प स्पॉट है, राइट, हो गया। यहाँ पे गर्ल्स है, कि गर्ल्स ऑफ हाइट 19 सेंटीमीटर इज, गर्ल्स ऑफ हाइट है, गर्ल्स ऑफ हाइट दिया 19 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प स्पॉट एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4। शेडो फाइंड करना है आपको आफ्टर 4 सेकंड के बाद। ए बी सी डी एंड ई, ये गर्ल्स है। आफ्टर ये शेडो बढ़ाई साइड 4 सेकंड के बाद तो हमको ए उसको एज्यूम कर दो एक्स फाइंड करना है, राइट, हो गया क्लियर है। एक्स जो आपको दिया है बेटा। नाउ लेट ए बी इक्वल टू क्या है, लैम्प स्पॉट है, एंड सी डी द गर्ल्स आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 सेकंड अवे फ्रॉम द लैम्प स्पॉट। लैम्प स्पॉट, राइट, कि सी डी इक्वल टू या डीई, सॉरी डीई इक्वल टू क्या है, शेडो ऑफ द गर्ल्स, डीई इक्वल हमने क्या है एक्स मीटर, क्लियर। अभी देखो बी डी इक्वल टू आपको दिया है, कितना दिया है 1.2 मीटर स्पीड दी है, 1.2 क्या है 1.2 मीटर, 1.2 इंटू 4 इक्वल टू क्या आएगा 4.8 मीटर। बी डी इक्वल टू 4.8। देखो बी डी कैसे आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, वो फॉर्मूला वेलोसिटी वी इक्वल टू एस बाई टी,
राइट, या डिस्टेंस इक्वल टू वी आपको दिया वेलोसिटी 1.2 इक्वल टू एस बाई टी, स्टैंडर्ड 9th में आया था मोशन चैप्टर में। टी आपको दिया 4 सेकंड, तो एस इक्वल टू क्या आएगा 1.2 इंटू 4, तो क्या आएगा 4.8 मीटर। क्लियर हो गया, 4.8 मीटर मिल गया। अब देखो दो ट्राइंगल है, ये क्लियर हो गया है। अब नाउ ट्राइंगल 4.8 AX मिल गया आपको। अब नाउ ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE में एंगल B इक्वल टू एंगल D। देखो तो लैम्प स्पॉट है बड़ा, तो स्ट्रेट ही होगा, तो उसका राइट एंगल ही बनेगी दोनों, ठीक है, गर्ल से। तो इक्वल टू क्या हुआ बड़ा इन ब्रैकेट में 90 या इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। कि लैम्प स्पॉट एज वेल एज द गर्ल इज स्टैंडिंग वर्टिकल टू द ग्राउंड 90 डिग्री। दूसरा क्या एंड एंगल E इक्वल टू एंगल E इक्वल दोनों एंगल में ट्राइंगल CDE और ABE में दोनों इक्वल हो गए। एंगल E इक्वल टू एंगल E, ये सेम एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया आएगा, देखो बेटा यहाँ पे भी एंगल है और यहाँ पे भी एंगल यूज किया, तो एंगल थ्योरम से कौन सी सिमिलरिटी हुई। नाउ ट्राइंगल EBE सिमिलर ट्राइंगल CDE इन ब्रैकेट एंगल इज इट क्लियर। देयरफॉर BE तो यहाँ पे क्या आएगा DE, BE तो यहाँ पे क्या आएगा DE। कि BE तो क्या आएगा DE इक्वल टू AB अपॉन CD। तो BE मीन्स होल है आपके पास, BE मीन्स BD प्लस DE, BD प्लस DE। DE आपको DE क्या है X है इक्वल टू AB आपको दिया है 3.6 मीटर। देखो आपको मेंशन किया होगा कि इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड, ये आपको कितना दिया था 3.6 मीटर। इज इट क्लियर, हो गया। अब नाउ सीढ़ी आपको दिया है 90, देखो क्वेश्चन में दिया है 90 से हाइट ऑफ द गर्ल्स कितना है आपको सीढ़ी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर है सीढ़ी। तो 90 सीढ़ी है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ सीढ़ी इक्वल टू 90, उसको कन्वर्ट 90 डिवाइड बाय 100, जीरो कर दो 0.9 मीटर सीढ़ी मिल गया आपको 0.9 मीटर। तो क्या आएगा 0.9, ये 3.6, 0.9। क्लियर हो गया कि BD प्लस DE, BD 4.8 प्लस X डिवाइड बाय X इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाय 0.9। तो कट कर दो अभी 9 4 जा 4.8 प्लस X डिवाइड बाय X इक्वल टू 4, डिवाइड से देन मल्टीप्लाई 4.8 प्लस X इक्वल टू 4X, प्लस है तो माइनस 4.8 इक्वल टू 4X माइनस X, 4.8 इक्वल टू 3X, तो X इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाय 3, 16 3 जा 1.6, तो X इक्वल टू 1.6 मीटर। क्लियर हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट समय याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल, ठीक है। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। फिर से देख लेते, देखो फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ 1 बाय 1 ले क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे गर्ल्स है, ले ट्राइंगल ABCD और ये लैम्प स्पॉट है, हाइट ऑफ द गर्ल है। देखो आपको क्वेश्चन देखना है, हाइट गर्ल्स ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर दिया था, तो 90 डिवाइड बाय 100 लग गया, मिला हमको 0.9, और ग्राउंड से बढ़ाए उसकी लैम्प स्पॉट हाइट 3.6 मीटर दिया है। ये 4.8 कैसा है आपको पता है, दिया था 1.V इक्वल टू 1.2 इक्वल टू BD मीन्स S बाई D फॉर सेकंड, 1.2 इंटू 4.8 DX से जूम कर दिया। ट्राइंगल EBE एंड
ट्राइंगल सी डी ई और एंगल एंगल बी वर्टिकल में तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 और एंगल ई इक्वल टू एंगल ई सेम तो सिमिलर हो गया। नाउ ट्राइंगल ए बी ई एंड सी डी ई सिमिलर हो गया। रेशियो बी ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी बाद में सॉल्व कर दो। हो गया क्लियर।